Hello everyone, my name is Shipra Singh and today we will discuss about a recently seen news about our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji unveiling a long-term blueprint for the marine economy. आज हम कंट्री की मरीन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे. मरीन इकोनॉमी जिसे कंट्री की ब्लू इकोनॉमी भी कही जाती है. बिफोर नोइंग व्हाट एक्चुअली इज ब्लू इकोनॉमी, let us try to know what is in news. In news, there have been many government initiatives being talked about. The very first is सागरमाला प्रोजेक्ट. सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बात कही जा रही है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की. Simultaneously, it will also improve the connectivity in coastal areas. The second government initiative in news is the Blue Economy Program. Blue Economy Program के अंतर्गत कोस्टल एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बात कर रही है सरकार. बिफोर नोइंग ईच एंड एवरी डिटेल एंड ईच एंड एवरी डायमेंशन, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू नो व्हाट एक्चुअली इज ब्लू इकोनॉमी. So blue economy refers to the sustainable use of the marine resources. I repeat, it's not the simple use of marine resources, it is the sustainable use. आप जब किसी भी resources का use sustainable तरीके से करते हैं तो you also use the resource in the present time and you also save the resource for the future time. So blue economy stands for the sustainable development and sustainable use of marine resources for various activities like exploration, economic activities, livelihood and transporting facilities. तो इन सारी के सारे फील्ड्स के लिए हम ब्लू इकोनॉमी को रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं. भारत में ब्लू इकोनॉमी की जो टर्म है वो बहुत सारे फील्ड से जोड़ी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ब्लू इकोनॉमी स्टैंड्स encompassing with shipping. It also encompasses with tourism. It also encompasses with oil and gas exploration. But the main point here is without harming the health of marine resources. ये सारे के सारे रिसोर्स यूज हमें इस प्रकार से करने हैं कि किसी भी तरीके की हानि मरीन रिसोर्सेज को नहीं पहुंचेगी. Now we have known the definition of blue economy. We will try to know its significance, the features and importance why we are discussing blue economy today. So basically there are 5 features. हम जब ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं तो 5 फीचर्स को बहुत ध्यान से और अच्छी तरीके से we take it into our consideration. The very first is transportation. ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे 7,500 किलोमीटर से ज्यादा कोस्ट लाइन मौजूद है with 9 coastal states, 12 major ports and 200 minor ports in the country. Our country, the 95% of the country's business through the transporting facilities happens in blue economy. Blue economy हमारे कंट्री की जीडीपी का 4% कंट्रीब्यूशन देती है. So now we know that transport influences the blue economy at a very wide level. Second point is expansion in shipping industries. India today is looking forward towards increasing its capacity. भारत अपनी कैपेसिटी को इस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है ताकि ये शिप रिपेयर और शिप मैनेजमेंट और शिप मेंटेनेंस तीनों के काम आ सके और एक हब की तरफ प्रयास कर सके. इट मस्ट एक्ट एज अ हब फॉर द शिप रिपेयर, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट. इससे भारत में बहुत सारे डेवलपमेंट देखे जा सकते हैं जैसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड सो ऑन. The third feature that we will talk is offshore energy production. एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में हम सभी जानते हैं धीरे धीरे देश में the demand for energy production is increasing day by day. So in order to meet the country's increasing demand for the energy production, development of offshore solar and wind energy will contribute at a massive level. Fourth feature जो आज का हमारा है that is aquaculture and marine biotechnology. जो डेवलपमेंट्स देखे जा रहे हैं ब्लू इकोनॉमी के कारण देश में, न तो ये केवल एक इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करेंगे, दे विल ऑल्सो इंश्योर द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के साथ साथ दे आर ऑल्सो इंश्योरिंग अ गुड एंड प्रॉपर हेल्थ ऑफ द मरीन इकोसिस्टम. लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फीचर इज सिनर्जी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यूनाइटेड नेशंस ने जारी किया हुआ है, उसके अंतर्गत इट स्पेशली सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो कहता है दैट टॉक्स अबाउट लाइफ अंडर वाटर. सो दीज आर सम फीचर्स दैट सिग्निफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू इकोनॉमी. ब्लू इकोनॉमी की डेफिनेशन जानते हुए, ब्लू इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और फीचर को जानते हुए हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट देयर आर मेनी चैलेंजेस दैट आवर कंट्री इंडिया इज फेसिंग टुडे इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ इन ब्लू इकोनॉमी. Challenges बहुत सारे हैं, but 4 major challenges that we will talk about today are, the very first is lack of infrastructure. जैसा कि मैंने आपको बताया, सागरमाला प्रोजेक्ट जिसके अंदर में पोर्ट्स के डेवलपमेंट की बात कही गई है सरकार के द्वारा. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा मेजर चैलेंज है अंडर विच द कोस्टल एरियाज आर नॉट हैविंग एयरपोर्ट्स, they are not having ports, and which makes it difficult for the economic activities to take place in these regions. Economic activity नहीं होगी तो इस रीजन में डेवलपमेंट कर पाना is next to impossible. The next major challenge that we will talk about today is marine pollution. Marine is a specific term that we use for the water resources. So basically talking about water pollution, बहुत सारे sources हैं water pollution के, जैसे oil spills, industrial waste, plastic waste. तो इन सारे सोर्सेस से निकल के आने वाली जो पोल्यूशन हो रही है, द पोल्यूशन इनटू द मरीन रिसोर्सेज इज इम्पैक्टिंग द ब्लू इकोनॉमी इन अ वेरी नेगेटिव मैनर. इट इज ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द हेल्थ ऑफ मरीन इकोसिस्टम. द थर्ड मेजर चैलेंज विच वी विल टॉक टुडे इज इंडिया श्रीलंका फिशिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. इंडिया श्रीलंका ये जो दो कंट्री है, द सिनेरियो इज द बाउंड्रीज बिटवीन बोथ ऑफ दीज कंट्रीज in terms of water is not clearly defined, because of which बहुत सारे confusion, बहुत सारे conflict create हो जाते हैं in the fishermen of both the countries. Last but not the least, the last challenge, major challenge is overfishing. Overfishing comes with 3 drawbacks. The first drawback is it is the major challenge that leads to the depletion of fish stocks. हमारे देश में जो fish stocks हैं वो धीरे धीरे deplete यानी धीरे धीरे decrease कम होती जा रही हैं. Second thing is it harms the ecosystem of the marine resources. हमारे water resources जो हैं, जो aquatic animals हैं, उनके health को बहुत negatively impact कर रहा है. And the third thing is it is very negatively impacting fishing industries. जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है और बाकी अदर इंडस्ट्रीज है ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड, उनको भी निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, विच ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन निगेटिवली इम्पैक्टिंग द ब्लू इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. सो नाउ वी नो द डेफिनेशन, फीचर, सिग्निफिकेंस एज वेल एज चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ब्लू इकोनॉमी. दूसरी जगह अगर बात करें, आई शुड ऑल्सो टेल यू दैट देयर आर सम वेज फॉरवर्ड टू दिस केस. कंक्लूजन में अगर हम जनरली बात करें, देयर आर 4 मेजर वे फॉरवर्ड्स टू दिस केस. द फर्स्ट वे फॉरवर्ड इज द मैनेजमेंट, द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट. रिसोर्स और डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो देयर आर सम थिंग्स दैट कैन बी डन अबाउट इट. जैसे कि पहला पॉइंट ये है स्टैब्लिशिंग अ फिशिंग कैच लिमिट. अगर हम फिशिंग की एक लिमिट बना दें, आप पर डे इतनी से इतनी फिशिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं एक्सीड कर सकते हैं, दैट विल हेल्प. सेकेंड, इन्फोर्सिंग अ रेगुलेशन टू प्रिवेंट द ओवरफिशिंग एंड अदर नेचुरल एक्सट्रैक्शंस. Doing these things will not only ensure a proper ecosystem of marine resources, it will also ensure a long term viability. हमारा reliance जो marine resources पे हम rely हो सकते हैं, depend हो सकते हैं, इसको बढ़ाने का काम करेगा. Next point, next way forward is investment in infrastructure. जैसा कि हमने बात किया, the major problem that blue economy of our country is facing is the lack of infrastructure. So investing in the construction of ports के कंस्ट्रक्शन करने से, एयरपोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन और अदर फैसिलिटीज के कंस्ट्रक्शंस करने से we will ensure proper economic development into the coastal areas. The third way forward to this case is research and development. Investing in research and development is a primary thing. किसी भी कंट्री की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना इज अ प्राइमरी थिंग.
इससे न सिर्फ इफिशियंसी इंक्रीज होगी बट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी विल ऑल्सो डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया को रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने से 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। द फर्स्ट फैक्टर इज मैरीटाइम आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। सेकेंड फैक्टर इज शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज। थर्ड थिंग इज कम्युनिकेशनल सर्विसेज एंड फोर्थ थिंग इज creation of a hub for knowledge. The fourth and the last way forward to this case is partnerships and collaborations. एक दूसरे के साथ संगठित होकर मिल करके काम करना. So working with the international organizations, with the international countries, other stakeholders, it will not only bring proper exchange of knowledge and proper exchange of resources, but collaborating with them for the initiatives and projects, कुछ projects को संगठित होकर के एक साथ करना, this will bring efficiency and economic development prosperity into the country. So that is all about the blue economy. All the dimensions of blue economy has been covered. Thank you very much.